Okay, so their conjugate complex numbers will also be equal. This is how we can say like this: is conjugate complex numbers are also equal. If two complex numbers are equal, then their conjugate complex are also equal. This is equal to this, is equal to this. So what we have done, we have multiplied this only second part of iota with minus sign. This also with minus sign. No change, because this minus and this minus, if I take this to this side or that to that side, it will become negatively, sorry, positive. They are complex conjugate or conjugate complex. If these two complex numbers are equal, then the conjugate complex are also equal. It is just based on this complex numbers. Okay, the third property. अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जिसे कहती है D part. The sum and product of two conjugate complex numbers are real. Okay, we have D property, fourth property. The sum and product of two conjugate complex numbers are real. This we have to prove. Now let z equal to x plus iota by a complex number, then z bar, which is symbol for representing a conjugate complex, equal to x minus iota by is a conjugate complex. Is a conjugate complex of the above number of x plus I y, x plus I y. This is conjugate complex of this, or both are conjugate complex of each other, or vice versa. We can say that if there is different sign, imaginary part is of different sign, then that complex number is a conjugate complex of the first number, previous number. Or this is of different sign than this one. This is also conjugate complex of this number. They are conjugate complex of each other. That is knowledge. This is conjugate complex of this number represented by z bar. Z bar is x minus iota y, is a conjugate complex of this number. So sum of these first let me find out. Therefore z plus z bar equal to x plus iota y plus x minus iota y. So z bar is this. Z bar is the second. This is first one. This is second one. This is conjugate complex. Okay, they are each conjugate complex of each other. Adding them, if there is a complex number, then its conjugate complex is added to this. Is giving us what? Iota y plus minus iota y is twice x, a real number. This is a real number. This is a pure real number. It's not an imaginary number, but a pure real number. Right. This is a real number. Now multiplication of these two, conjugate complex and complex number. And multiplication, this is a real number, addition is a real number, or multiplication or product. Multiplication or product of a complex number and its conjugate complex. Multiplication of these two. That means z into z bar equal to what? X minus iy
sorry, x plus iota y into x minus iota y. Let me multiply them. This is a plus b and a minus b. It will be x square minus iota square into y square. But iota square is equal to minus 1. So putting x square, this is minus 1 into y square. It will give us x square plus y square plus sign. This is a real number. So this we have to prove the product and sum of a complex number with its conjugate complex or conjugate complex numbers. Conjugate complex numbers sum and product is real number. This is real number, so this actual by is real number without iota. Iota is not here, so this is a real number. This proved. ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है. ये दोनों प्रूव हो गए कि सम और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए रियल नंबर. ये प्रूव करना था. पहले सम भी प्रूव करना था कि वो भी रियल नंबर होगा. हमने दोनों चीज प्रूव कर दी, ठीक है. देखा आपने कि ये दोनों कैसे प्रूव किया. ये हो गया जी प्रूफ ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. और पांचवा पार्ट देखते हैं. इसका फिफ्थ पार्ट क्या होता है. फिफ्थ पार्ट में है, कहते हैं द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज होली इमेजिनरी. डिफरेंस ये प्रूव करना है. डिफरेंस ऑफ टू conjugate complex numbers, two conjugate complex numbers is wholly imaginary. We have to prove that वो completely imaginary number आता है, real number नहीं आता. क्या डिफरेंट. चलिए सर, तो लेट ये प्रूफ कर दे. हमने माना कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. देखो जेड बार क्या होगा भाई, एक्स माइनस आयोटा वाई. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं. देयरफॉर डिफरेंस जेड माइनस जेड बार इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हुआ. माइनस साइन एक्स माइनस आयोटा वाई होगा जी एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई. माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट. ये आएगा ट्वाइस आई इंटू वाई. इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी नंबर, होली इमेजिनरी. यही आपको प्रूव करना पड़ेगा. क्या आ गया ये होली इमेजिनरी नंबर. दिस इज होली इमेजिनरी. यही प्रूव करना था. The difference of two conjugate complex numbers is a wholly imaginary number. ये फिफ्थ पार्ट हो गया इसका. चलिए 5 पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए. ये सब प्रूफ हो गया. प्रॉपर्टीज हैं इसकी. ओके, ये द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. वो क्या कहता है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ. चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. रियलाइजेशन, तो एज आई टोल्ड यू कि हमेशा डिनोमिनेटर अगर रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स रेशियो वाले, जिसमें डिनोमिनेटर भी होता है न्यूमरेटर भी होता है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को आपको रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए. इसे कहते हैं रियलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 5 ये चेंज करके इसे मार्क कर दिया. ओके, रियलाइजेशन
What is realization of a complex number? Realization of a complex number. ये क्या होता है? Realization of a complex number is what? देखिए, in case of a rational complex number, okay, the denominator is converted into a real number. Is real number. So denominator in a rational complex number is converted into a real number. ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं रियलाइजेशन into a real number. This process of changing the denominator into a real number, okay, is known as realization of a complex number. This is known as realization of a complex number. समझिए आप व्हाट इज रियलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर को हमेशा रियल नंबर में आपको कन्वर्ट करना होता है किसी भी रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में. देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन प्रूव करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस व्हाट इज दिस? सपोज करो x1 plus I by 1, this is value of z1, and z2 equal to x2 plus I by 2. Therefore z1 upon z2 equal to x1 plus iota by 1 divided by हो गया x2 plus I by 2. अब डिनोमिनेटर में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको आप रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. You multiply this by x1 plus I by 1 divided by x2 plus I by 2 by its conjugate complex. क्या होगा? x2 minus I by 2 divided by x2 minus I by 2. सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. देखिए कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर आ गया x1 x2, x1 से किया माइनस आयोटा x1 by 2 प्लस इससे किया I by 1 x2 माइनस इससे किया तो माइनस I स्क्वायर by 1 by 2. नीचे क्या होगा? डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी टाइप जो हो गया x2 स्क्वायर प्लस और माइनस साइन आयोटा स्क्वायर इंटू by 2 स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. ऊपर आ गया भाई x1 x2, यहाँ से आएगा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस ये आ गया प्लस y1 by 2. देन यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते, माइनस आयोटा पहले आएगा x1 by 2 प्लस और माइनस साइन माइनस y1 x2. ओके, नीचे डिवीजन क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. देखा आपने, डिनोमिनेटर हो गया रियल नंबर. ठीक, कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये केस में इन केस ऑफ ए रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर अगर होता है उस केस में आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना होता है. इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हो गया. दिस इज प्रूव्ड. Denominator is real number, is a real number. This is a real number. This is a real number. इसी कहती है रियलाइजेशन. चलिए सर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5. अब देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए if z equal to x plus I by then taking x plus iota by is equal to, sorry friends, okay, x plus iota y is equal to r into cos theta plus iota into sin theta। ये आप जो वैल्यू लेते हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं आर और थीटा के टर्म में। फिर आर को कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड और इस कहते हैं या आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। इसके बाद थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। ओके, ये इसमें कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट मान लेते हैं। देन टेकिंग दिस इक्वल टू दिस, here x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। कंपैरिजन किया, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं। r क्या था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलता है आपको, बी डेट। यहाँ देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 सिंस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, जानते हैं आप, हमने इसलिए 1 रख दी। फिर आगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आर कहते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू आप इस तरह से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट थीटा निकालते हैं। अब हमने क्या किया, साइन थीटा हम जाने थे कि आर साइन थीटा इक्वल टू था एक्स वाई के बराबर, आर कॉस थीटा मतलब एक्स के बराबर। ये दिस अपॉन दिस क्या होगा, साइन आर साइन थीटा आर कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स डिवाइडिंग दिस फर्स्ट बाई सेकंड। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से थीटा आ गया, this implies that theta equal to हो गया tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये थीटा और r को आप इस तरह से वैल्यू लिख देते हैं। अब जरा देखिए इसका मतलब r और थीटा की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम therefore x प्लस आयोटा बाई इक्वल टू आ गया थी r की वैल्यू वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यार की वैल्यू थी इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हियर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स और वी कैन टेक कॉस थीटा इक्वल टू, ये था एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, वो है वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। साइन थीटा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉस थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो वैल्यू आ जाती है। तो आप इस तरह से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आर की वैल्यू आपने ये पुट कर दिया cos थीटा sin थीटा वेयर थीटा इज tan इनवर्स बाय अपॉन, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं।
ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जब इसको एक्सप्रेस करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये था 6th। नाउ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन 7 से देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है जी। यहाँ देखिए when a complex number, this I am defining solution, when a complex number is expressed in standard form, then or x plus iota y is equal to r into cos theta plus iota sin theta। उस केस में जो थीटा होता है, ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x is known as एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट and its principal value will be or will lie either 2n pi plus theta, okay, in this form, or minus pi is less than theta is less or equal to pi, where this is principal value of theta. Theta is known as argument or amplitude. When we express a complex number in the form of a standard form, तब हम उसको argument कहते हैं थीटा को, और एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट थीटा को बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक्स प्लस आयोटा वाई अगर इक्वल टू है आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब थीटा निकाल देते हैं, थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाइक करती है, व्हाट इज द कॉमन वैल्यू फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑफ थीटा, दैट थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। जो वैल्यू आती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जैसे अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव, इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लाई करेगी। यहाँ ये आर्गुमेंट जो एम्पलीट्यूड थीटा है, वो इसकी वैल्यू दोनों के लिए कॉमन वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 2 टू पाई के बीच में लाई करेगी, है ना। तो ये दोनों के लिए कॉमन वैल्यू, उसमें एंगल निकालेंगे आप, ये बोले द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट थीटा। थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट की बात होगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 कहता है हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली। चलिए तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किस तरह से, ज्योमेट्रिकली और आर्गन डायग्राम बोलते हैं उसको, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलिए सर
ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of a complex number. Geometrical representation of complex number. देखिए, if complex number z solution equal to x plus I over y, then x by an ordered pair of numbers or coordinates here, numbers of coordinates is represented at a point or as a point let me take as a point in the coordinate system, which we know about coordinate system, or in Argand diagram, known as Argand diagram. जैसे आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन डायग्राम, वैसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ओरिजिन ओ, एक्स डैश एक्सिस। अगर आपने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यह एक्स एंड वाई पॉइंट पी पॉइंट था, उसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये आर वैल्यू होगी इसकी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एक्स है, ये वाई है परपेंडिकुलर, इसको इमेजिनरी एक्सिस आई बोलते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस is an imaginary axis, in case of complex numbers। तो y एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यहाँ से r की वैल्यू नेचुरली क्या आ जाएगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो r स्क्वायर को आगे या तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा और r होते थे, हम जानते थे आर्गुमेंट, और ये थीटा आर्गुमेंट कहलाता है, थीटा को आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड, और ये मॉडुलस वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो r इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, मॉडुलस जेड की वैल्यू है, मॉडुलस r की वैल्यू, r इज मॉडुलस जेड और जेड की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ जेड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, r इज अंडर एक्स वाई स्क्वायर, थीटा ये है, यहाँ थीटा और r को क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स एंड वाई सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, एक्स एंड वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा एंड आर पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इस तरह से आप इसको आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई न्यूमेरिकल पॉइंट लिया, जैसे making a nuisance. Let me stop it. Okay, so AC is off. Let us take the geometrical representation of a, if let me take z complex number is 3 plus 4i complex number. Now representing it geometrically. तो ये रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन 3, दिस इज 3 पॉइंट here, ओके, एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट, दिस 4 पॉइंट, ये पॉइंट है 3 एंड 4, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ये जॉइन किया, दिस 3 here, दिस इज 4 I, this is imaginary axis,
and r value कितनी आ जाएगी under root of 3 square plus 4 square, that means 5. R is equal to 5 here. This is theta angle. Therefore 3 plus 4 iota is equal to R, which is 5 cos theta. Theta here will be any value cos theta plus I sin theta, but R is here 5. 3 square 9, 4 square 16, square root of that is 5 of 25. This is the standardization of the standard form of the complex number. And the presentation is like this. This is x-axis, origin, y dash axis, x dash axis. Okay, same as in coordinate system, but this is known as, but here y axis is known as imaginary axis. In case we have to represent the imaginary part or non-real part or imaginary part of the complex number along the y-axis, and real part along the x-axis. This is known as real axis, imaginary axis, y-axis. This is the only difference. Okay, so geometrical representation of a complex number. Let us take now question number 9. The complex number we are dealing with. Let us take next 9th question number. Here are the complex numbers we are dealing with. क्वेश्चन नंबर 9 था. अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है. 9 में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म x प्लस आल्फा बाई. ये करना था आपको. एक्सप्रेस ये है 2 प्लस 3 आयोटा फॉर्म 4 माइनस 5 आयोटा in the form x plus iota y. चलिए सब रिप्रेजेंट कर देते हैं. सॉल्यूशन 2 plus 3 iota upon 4 minus 5 iota. So realization of the given complex number is equal to 2 plus 3 iota upon 4 minus 5 iota into 4 plus 5 iota conjugate complex of the denominator to multiply and divide 4 plus 5 iota. This will give us 2 into this 8